Hi everyone, this is Saurabh Thakur and today the video is very important. Many of you are going to appear in the PhD interview for English literature especially. So I searched on YouTube and I found very less videos on the same topic, and even when I appeared in so many English PhD interviews, so I did not get sufficient knowledge and experience from the YouTubers. And this video is based on my own experience. I have appeared in so many universities for PhD interview, and currently I am pursuing PhD. I have got admission in a state university in my own state, and I'm doing, hopefully and fortunately, I'm doing PhD right now. And I have given PhD interview in IIT Delhi, Central University of Himachal Pradesh, and many other universities for 3 or 4 times. So I am sharing my own experience with you, and I will tell you that how many questions can be there in the interviews and what type of questions will be there and how you have to answer them, right? So I'll try to speak in both the languages, English and Hindi as well. थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश मेरी खराब हो जाती है ना, मैं इंग्लिश ढंग से बोल पाता हूँ ना हिंदी. अभी ये फिर से होगा. So okay, so सबसे पहले, first of all, you must know that how to sit in the interview. Before that, you must know that how to enter into the room. So remember one thing, go silently, open the door and ask for the permission, and if they allow you, wish them good morning, good noon or good afternoon, whatever time it is, right? And remember one thing, if there are 4 or 5 members in the panel and there is only one woman, so you have to greet the woman first, like you are entering inside, and you must say good morning ma'am and then good morning everyone, like this, so that they can know about your character, that you respect women a lot. कोई भी बुरा नहीं मानेगा इस बात का. सबसे पहले औरत को इज्जत देना, अगर इकलौती औरत है तभी, अगर 2-3 है तो सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन या फिर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी आपने कहना है, ठीक है. इफ देयर इज अ सिंगल वुमन, ओनली देन यू हैव टू विश द वुमन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गो फर्दर, राइट? चलो, then comes the second thing, that how to sit in the interview. So what will you say, that what is the correct posture that you must sit? Which one will you choose? 1, 2, 3 or 4 or 5? So my answer is this one. This one is the correct pose that you must sit in an interview. मुझे भी किसी प्रोफेसर ने ये चीज बताई थी. A professor told me, मैंने एक इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन अ वेरी रिनाउंड कॉलेज. सो देन आई टुक सम टिप्स फ्रॉम वन ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ माय कॉलेज. सो ही टोल्ड मी टू सिट लाइक दिस, क्रॉस लेग्स, एंड योर हैंड शुड बी ऑन योर थाइज, ऐसे करके, ठीक है. एंड यू शुड बी इजी एंड यू मस्ट हैव अ स्माइलिंग फेस, राइट? इस चीज की हमने डिटेल में नहीं जाना है. आज मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बात करूंगा. दीज थिंग्स आर डिफरेंट, but still I talked about these things in the beginning so that you don't forget these things, ठीक है? Okay, so first question is introduce yourself. This is a very cliched question, very interesting and hackneyed question. Everybody asks this question whenever you go for an interview. If I talk about my IIT Delhi interview experience, so first of all they ask for the research proposal and then they select your proposals, and then they call or they shortlist you for the interview and you appear in the interview. And if your interview is satisfactory or you have JRF, so they will select you, otherwise you won't be selected. The same happened with me. I was shortlisted for the interview, but the interview was just a formality. सिर्फ formality के लिए उन्होंने इंटरव्यू लिया. IIT दिल्ली वालों ने ऑनलाइन इंटरव्यू था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा. They didn't ask me about myself, introduce yourself, your topic, nothing. They directly put the question and I could not answer the question properly. I was not satisfied with my answer, I must say. But still, I answered the question and they asked only one question and interview was only for 1 or 2 minutes. So it was short, it was clear that they don't want to take me in, right? But still, I'm sharing my experience in other universities. In some universities, your interviews go for like half an hour. One of the central universities I appeared in, they took my interview for 20 minutes or 25 minutes and they were taking half an hour also. तो उसमें क्या है कि you have to introduce yourself. सबसे पहले, when you have to introduce yourself, सबसे पहले नाम,
आप सभी लोग जानते हैं, everybody knows that you have to name yourself. Just like if I give my interview, so I'll say this is Saurabh Thakur or I am Saurabh Thakur. Do not say myself. This is very cliche. This is very old. Myself Saurabh Thakur or whatever. Say it is Saurabh Thakur or this is Saurabh Thakur or Saurabh Thakur here, like that. And then talk about your place that you come from. सबसे पहले अपना नाम बताना है भाई, ठीक है, माई सेल्फ नहीं लगाना है, ठीक है, फिर आपने आना है प्लेस पे, देन यू हैव टू कम टू द प्लेस दैट यू हैव कम फ्रॉम. जस्ट लाइक आई विल से फॉर एग्जांपल आई एम सौरभ ठाकुर एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ऐसे करके जो भी आपका ओरिजिन है वो आप बताएं, आप कहां से आए हैं, कौन सी जगह से आए हैं, वो जरूर बताएं. देन यू हैव टू कम टू योर स्कूलिंग एंड अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. For example, I'll say I did my primary schooling from my village and then I came to Shimla and then I did my further schooling and graduation or bachelor's or whatever you want to say it, BSc, MSc, जो कुछ भी है, from that college. And do not go in detail. I did my 5th from there, 8th from there, 10th from there, plus 2 from there. No, do not go in such details. And then come to bachelor's and then come to master's or MPhil or whatever you have done. And also remember that you have to add your achievements and experience when you are telling about these things. For example, if I have to introduce myself, I'll say I'm Saurabh Thakur with a smiling face. I'm Saurabh Thakur and I'm originally from Sirmaur district of Himachal Pradesh and I have done my primary schooling from my village and then I came to Solan and I did my further schooling and graduation from the same city and then I came to Himachal Pradesh University for doing masters and I was a gold medalist in MA English and then I was enrolled in MPhil and I was the topper of the entrance or whatever you want to say, whatever achievement you want to add with your school or if you have distinction in your plus 2 या फिर 10th plus 2 में आपने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, आपने टॉप किया है, आपने कॉलेज में टॉप किया है, कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर आपने एक्टिविटी की है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट या फिर आपके अचीवमेंट है, ठीक है, यू हैव टू मेंशन दोज अचीवमेंट्स. क्योंकि इफ यू विल से योर अचीवमेंट्स सोलिली और सेपरेटली सो दैट विल बी लाइक ब्रैगिंग योरसेल्फ, है ना, वो लगेगा जैसे शेखी बगार रहे हैं आपकी अपने बारे में अलग से. नाउ आई विल टेल यू माय अचीवमेंट्स, ऐसा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ ही यू मस्ट ऐड योर अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस एज वेल एंड एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड. Experience as a researcher, if you have done something in your master, if you have done related to research or any research project or any research paper you have published in your masters or bachelors, then you have to mention that thing because this is a PhD interview, कोई जॉब का इंटरव्यू नहीं है. आपको अपना कोशिश करना है कि जो भी आप कह रहे हो आपकी इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ दिखे. whatever you are saying, the interviewer must be aware that yes, he is telling or he or she is telling something about research and he or she has experience in research field, right? ऐसे करके आपने स्कूलिंग, मास्टर्स जो भी है, एंड ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट और यूजीसी जेआरएफ और एचपी सेट या फिर आपका जो भी स्टेट है आपने सेट निकाला है, कुछ भी है. इफ यू हैव रैंक, जैसे कि मेरा एचपी सेट में 4th रैंक था, तो आई एड विद आई हैव क्वालिफाइड एचपी सेट विद 4th रैंक. ऐसे करके आपने अपनी अचीवमेंट्स बतानी है, राइट? एंड देन यू हैव टू कम टू योर फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to say that my father is a businessman, my mother is a homemaker and I am the youngest boy in the family. I have 3 elder sisters and 2 are teachers and बस एक जो तीसरी है या फिर तीनों टीचर है, तो बता दो जो भी उनका प्रोफेशन है. एंड ओनली द प्रोफेशन विच इज एन अचीवमेंट. डू नॉट से माई सिस्टर्स आर मैरिड, माई ब्रदर इज मैरिड, दे हैव 4 kids और 2 kids और 5, क्योंकि मैरिज इज नॉट एन अचीवमेंट. मैरिज कोई अचीवमेंट नहीं है. मैरिज तो सभी करते हैं, मुझे भी करनी है, एक दिन आपको भी करनी है, आप कहीं मैरिड भी होंगे, तो इसमें कोई अचीवमेंट वाली बात है नहीं, है ना. लेकिन हाँ, अगर कोई सरकारी नौकरी वाला बंदा ना हो और वो शादी उसकी हो जाए तो वो अचीवमेंट है, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले को जल्दी जल्दी शादी नहीं मिलती. ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है. बट स्टिल, जोक्स अपार्ट, तो फैमिली के बारे में कुछ ऐसा बताना है जो अच्छा हो. मम्मी पापा का प्रोफेशन तो जरूर बताना है, वो जो भी करते हैं, वट एवर योर पेरेंट्स डू मेंशन, है ना. एंड देन कम टू योर हॉबीज. ठीक है, हॉबीज पे हम आएंगे. तो हॉबीज में यू हैव टू ऐड 4 or 5 हॉबीज दैट यू हैव. आई प्ले क्रिकेट, आई लव टू डांस, आई लव टू कुक, आई लव टू टॉक टू पीपल, और आई लव ट्रेवलिंग, और वट एवर यू लव और लाइक और यू आर परफेक्ट इन.
when I appeared in the interview for assistant professor, so मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से बनाऊंगा वीडियो जिस दिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी तभी मैं इस लायक हो पाऊंगा कि मैं आपको बता पाऊं कि पीएचडी इंटरव्यू में कैसे आपको अपीयर होना है और कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है जिस दिन मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर, उसी दिन मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं उस लायक हूं कि मैं आपको ये सब बताऊं। जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन बताऊंगा। ठीक है, तो एड योर अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंस हो गया, फैमिली हो गया, हॉबीज में आपने दिया। एंड नोटिस वन थिंग, व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू एंड यू आर टेलिंग अबाउट योर हॉबीज, फैमिली, सो रीड द फेसेस। आप ये देखो कि वेदर द इंटरव्यूअर इज टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टेटमेंट्स और नॉट। अब जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहां पे व्हेन आई वाज टेलिंग अबाउट माय हॉबीज कि मैं ये भी पसंद है, मैं ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, दे वर रियली स्माइलिंग, लिटरली स्माइलिंग। सो आई वाज रियली एंजॉयिंग टेलिंग देम अबाउट माई सेल्फ। I was telling them I teach on YouTube and I have this much experience, जहां जहां भी मैंने पढ़ाया है, जो कुछ भी है। So they were really smiling। तो तब बताने का मजा आता है। अगर आपको लगता है कि अगला थोड़ा बोर हो रहा है तो शॉर्टकट में, फैमिली के बारे में शॉर्टकट में हॉबीज 2-3 बता के खत्म कर दो बात। ठीक है, सो लास्ट में दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, ये आपकी हो गई इंट्रोडक्शन। लेट्स गो फर्दर। Why do you want to do PhD? A very famous question that will be asked for sure in your interview. So I have prepared 3 answers for you. ठीक है, मेरे साथ आपने पढ़ना है, खुद नहीं पढ़ना है, ताकि आपको साथ साथ में मजा आए। ठीक है, अब देखो भाई, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो ये चीज आपने उन्हें बतानी है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बोलना है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहता हूं, आई वांट डॉक्टर इन माय नेम, है ना। डू नॉट टेल दीज लिटिल थिंग्स, से लाइक दिस। जैसे पहला है, आई हैव एंजॉयड माई एकेडमिक वर्क सो फार बट आई रियली फील आई हैव गॉट मोर टू ऑफर एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। मैंने एंजॉय किया है अपना एकेडमिक वर्क सो फार, बहुत इंटरेस्ट लिया है, बहुत मुझे शौक है एकेडमिक्स में, तो इसलिए मैं फील करता हूं या करती हूं दैट आई हैव गॉट मोर टू ऑफर, कि मेरे पास और भी कुछ है ऑफर करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। ठीक है, आई एम ऑल्सो पैशनेट। यू हैव टू टेल योर पैशन अबाउट पीएचडी। ठीक है, कि आपका पैशन कितना है रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड डोंट फील एनफ अटेंशन हैज बीन पेड टू द क्वेश्चन आई एम लुकिंग टू एड्रेस। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपने रिसर्च में लिया है। ठीक है, अभी हम आएंगे रिसर्च प्रपोजल पे भी, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे अभी, है ना। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही नया है ना। अब दूसरा है, दूसरा ये मैंने आईआईटी दिल्ली में भी भेजा था, जो मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था। उसमें भी कुछ क्वेश्चनएयर होते हैं, क्वेश्चनएयर भी के आंसर भी देने पड़ते हैं, रिसर्च प्रपोजल भी मांगते हैं वो। सो द सेकंड आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ कीन, ओके ये गलती से हो गया, यहाँ कीन होना था। ठीक है, ये कीप नहीं है, कीन लिखना था मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर एंड हैव अ ज़ील टू डू समथिंग न्यू, बिकॉज अ रिसर्चर इज एन ऑब्जर्वर, ओनली देन somebody कैन do research if he or she is a good observer. ठीक है, as a matter of fact, a doctorate degree will be a haymaking stroke in my life because we belong to language, English language, so you can use some complicated words like haymaking. Haymaking is when you are reaping something. ठीक है, जब आप कुछ hay बना रहे हो, जब फसल काटते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये कुछ hay making का काम करे, कुछ मैं अचीव करूं, इससे कुछ सीखूं। My enthusiasm to learn will help my clan and country in research field by taking it to the zenith. Zenith is the height, zenith is the height, topmost part. ठीक है, which very few are privileged to do. मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं अपने देश के लिए, अपने क्लैन के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, क्लैन बोले तो कम्युनिटी आपकी, अपने लोगों के लिए हाइट पे ले जाना चाहता हूं इस चीज को, जो कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये मौका मिल पाता है। तो मैं वो मौका चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव दैट प्रिविलेज टू डू समथिंग। ठीक है, सो टेल देम योर पैशन। ठीक है, हाँ जी, तो लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो थोड़ा सा ये हो नहीं सकता कि आपके लिए एप्लीकेबल भी हो, क्योंकि चलो देख लेते हैं इसको। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी थियरी बिकॉज सो मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ लिटरेरी थियरी, राइट, बट आई एम नॉट। I was, but I am not, because I taught literary theory. I have covered almost every topic of literary theory. Only then I am very much confident in literary theory. So this is the answer that I prepared for myself. हो सकता है आप पे applicable हो या ना हो. It can be applicable on you or not. है ना? So I have always enjoyed reading and understanding literary theory. It is considered as complicated, but I love it the most. है ना? This
is the thing that makes you different. I'm really excited to apply these theories in my research work so that I can live and enjoy it practically as well. Means मैं पढ़ने में बहुत मजा लिया हूं लिटरेरी थियरी को, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं इसको अप्लाई करके देखना चाहता हूं प्रैक्टिकली, मैं इसको जीना चाहता हूं, मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूं प्रैक्टिकली भी। अब मैंने पढ़ तो बहुत लिया क्रिकेट के बारे में, लेकिन क्रिकेट को मैं खेल के देखना चाहता हूं, कितना मजा आता है इसमें, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो दीज आर फ्यू आंसर्स दैट यू कैन गिव टू द क्वेश्चन व्हाई डू यू वांट टू डू पीएचडी। ठीक है, next question, why from this university? Remember one thing, whenever you are going to appear in an interview for PhD, know something about the university. Know that when it was founded and how many departments it has, और विकिपीडिया पे जाके जहां भी यूनिवर्सिटी के बारे में मिलता है कुछ ना कुछ 4-5 फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। Who is the वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी? You must know this thing. For example, इंटरव्यू में पूछ ही लिया कि you have come to this university for PhD interview and tell us, do you know who is the vice chancellor of this university? And what if you are not able to answer this question? है ना, बेइज्जती हो जाएगी। तो आंसर इसके लिए क्या है? I have heard all positive things about this university from my colleagues and professors. कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपने कलीग से और प्रोफेसर से। Especially, अब डिपार्टमेंट को मेंशन करना है इंग्लिश के। Especially, I've gone through the profiles of the professors of the Department of English and also the research work done by the scholars here. ठीक है, profiles के साथ you can also add that I have gone through the area of interest that the professors of this particular department share, and I really liked the areas and my research areas are also same, just like that, है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन इस सीक्वेंस में ना पूछे जाए, कोई क्वेश्चन जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो पहले पूछा जाए, पहले वाला लास्ट में पूछा जाए, बट दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड। और मुझे यकीन है कि आप लोग पक्का सिलेक्ट होंगे अगर आपने ये क्वेश्चंस, ये वीडियो पूरी देखी और बढ़िया से देखी और इसको समझा। तो दिस यूनिवर्सिटी रियली बिलीव्स इन क्वालिटी एजुकेशन। उनकी तारीफ करो, यू हैव टू प्रेज द यूनिवर्सिटी, द डिपार्टमेंट, द टीचर्स, ओनली देन वो गदगद हो जाएंगे विद अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। कि भाई स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इट वुड बी अ प्रिविलेज, मेरा एक ये सौभाग्य होगा, सौभाग्य लिख के देखना चाहता हूं मैं, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहां पे फॉर मी टू डू माई डॉक्टरल रिसर्च फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, एंड आई अश्योर यू दैट आई विल पुट एवरी एफर्ट टू प्रूव माई सेल्फ। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और आई विल नॉट मेक यू अनहैप्पी बाय एनी मीन्स, राइट। सो दिस कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाई फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। बाकी तो आपको पता होगा कि आप क्यों उस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो। यू कैन से दैट दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड पर आपको एकेडमिक तारीफ करनी पड़ेगी। ये ऐसी तारीफ नहीं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, कैंपस बड़ा सुंदर है, नो, ये चीजें नहीं कहनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज मैं आपको बताऊं, द इंटरव्यूअर इज ओनली फोकस्ड ऑन योर रिसर्च टॉपिक when you are going to appear in a PhD interview. He has or she has nothing to do with other things. If you satisfy the interviewer with your topic and you defend the topic in a better way, in the best way, only then you will get selected. ये चीज ध्यान रखना, रिसर्च टॉपिक, आपका जो रिसर्च प्रपोजल उनके पास आपने दिया है, वो रिसर्च टॉपिक अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इतना भी यूनिक नहीं होना चाहिए कि आपका उसमें पहले कोई काम ही ना हुआ हो, आपको सेकेंडरी सोर्सेज ही ना मिल पाए। द टॉपिक शुड नॉट बी सो मच यूनिक, है ना, बट इट शुड बी यूनिक, बट सम वर्क मस्ट हैव देयर ऑन द सेम टॉपिक ऑन गूगल स्कॉलर और जहां भी आप उसे देख रिसर्च करोगे। सो व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक? देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज योर टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के बारे में यू हैव टू गिव अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक? व्हाई का क्वेश्चन लग गया, क्यों? What was new in this topic? ठीक है, अब आपको you have to tell more about your topic. For example, आपका टॉपिक है फेमिनिज्म। For example, for a moment, feminism है। Then the interviewer will ask, why did you choose this topic? Then you have to say that the feminism is going in the mainstream and there are so many cases that we see every day against women or men, because feminism talks about gender equality. It's not only about women, it's about men as well,
राइट। सो ये सारी चीजें आपको बतानी है, जैसे भी आप इसे डिफेंड कर सकते हो करो। एंड देन यू शुड बी अवेयर अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। जैसे कि आपका कल्चरल फेमिनिज्म है, आपका लिबरल है, ठीक है, आपका इको फेमिनिज्म है, और आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, आपका रेडिकल फेमिनिज्म है, आपका ब्लैक फेमिनिज्म है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस, मतलब कि द टॉपिक दैट यू आर टेकिंग इन, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट टॉपिक इन डेप्थ। इन डेप्थ आपको पूरा गहराई में पता होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। मतलब द इंटरव्यूअर जो है आपसे कुछ भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए उस चीज का। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द रेलेवेंस, आपके टॉपिक की रेलेवेंस क्या है, उसकी ब्रांचेस अगर पूछते हैं तो बताना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए जो भी आप टॉपिक पे काम कर रहे हो। व्हाई दिस राइटर, अब इफ यू हैव अ टॉपिक यू विल चूज अ राइटर एज वेल, सो दे कैन आस्क यू व्हाई ओनली दिस राइटर, देन यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज यूनिक इन दिस राइटर, what was the thing that attracted you towards that writer, what was the topic, what was the notion, what was the idea, ठीक है। what is new in your research, they will ask you definitely, then you have to mention that what will be your findings, what are your objectives, how is it beneficial, आपको बताना पड़ेगा कि मेरी इस रिसर्च की फाइंडिंग्स ऐसी ऐसी होगी और ये कुछ अलग होना चाहिए, दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन दैट आई विल एक्सप्लोर, और ये मेरी फाइंडिंग्स होगी। और ऑब्जेक्टिव्स भी आपके 4-5 ऑब्जेक्टिव्स तो आपके होने ही चाहिए रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। एंड हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी और रिसर्चर्स, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। व्हाट इज न्यू इन योर रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप इसको डिफेंड नहीं कर पाए क्वेश्चन को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। बाकी चीजें अगर पूछते हैं तो ठीक है, नहीं पूछते हैं तो भी कुछ पता नहीं है। एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, व्हिच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज, और उन्हें कोई ऐसी वैसी बुक मत बता देना कि चेतन भगत पढ़ रहा हूं, है ना, ठीक है। यू कैन रीड चेतन भगत फॉर एंजॉयमेंट, बट बुक्स ऐसी बताना विच इज रियली मीनिंगफुल। कोई सेल्फ हेल्प बुक है या फिर कोई ऐसी बुक जो आपके रिसर्च टॉपिक से ही रिलेटेड है, रिसर्च टॉपिक जो आपने यहां पे अभी बताया है उसी से रिलेटेड अगर कोई बुक है, the book which is related to the current topic that you are talking about in the interview, then it will be more effective, right? इन क्वेश्चंस के आंसर को तैयार कर लेना। What are your primary and secondary sources? How many books have you taken? मैंने इग्नू दिल्ली में एक और इंटरव्यू दिया था, वो ऑफलाइन इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था वो भी, but then I chose my own university, my own state. What are your primary and secondary sources? They asked me that what are the books that you are taking in, what is your primary text. So in PhD at least there should be 3 to 4 texts on which you are going to do your PhD, ठीक है। तो 3-4 बुक्स के नेम आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। And they can also ask you, जैसे for example your topic is feminism, तो they will ask you, do you know any other feminists, how many feminists are there, name some feminists, name some of the major texts in feminism. How many texts have you read about feminism, which is the text that you are reading currently, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। These questions will be asked. इस चीज को हमेशा याद रख लेना। मैं इस क्वेश्चन में फंस गया था थोड़ा वहां पे, पर फिर भी जैसे तैसे आई डिफेंडेड, थोड़ा फंस गया था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। फेवरेट राइटर पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हु इज अ फेवरेट राइटर, दैट कैन बी अ पोएट, that can be a novelist, then that can be a playwright, वो कुछ भी हो सकता है, बट प्रिपेयर वन राइटर एटलीस्ट, एक राइटर को प्रिपेयर करके जरूर जाना,
उसके बुक्स पता होनी चाहिए, उसके कुछ कोटेशंस पता होनी चाहिए, उसकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए एक फेवरेट राइटर को तैयार करके जाना। और टॉपिक से रिलेटेड फेवरेट राइटर हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, योर फ्यूचर गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इफ दे लाइक यू, ओके, योर इंटरव्यू इज गुड, यू हैव डिफेंडेड ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव ऑल द क्वालिटीज, बट व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लानिंग्स? सो डू नॉट टेल देम दैट आई हैव टू मैरी। ठीक है, मैंने एक लड़की देखी हुई है, उसे शादी करनी है, बस एक बार पीएचडी में एडमिशन हो जाए, मजा आ जाएगा, है ना। ये चीजें आपने नहीं बोलनी है। ठीक है, और दूसरी चीज ये नहीं बोलना है कि हाँ मुझे तो ये डॉक्टर लगाना नाम के आगे, फिर जॉब लेनी है, फिर पैसा आएगा, मनी के लिए मैं ये कर रहा हूं, ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। फ्यूचर गोल्स मस्ट बी रिसर्च ओनली। यू कैन से दैट आई विल डू पोस्ट डॉक बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड to do or to continue my research, and I will publish some research papers, I'll write books, I want to become a very influential professor in upcoming time so that I can enlighten my students। ऐसी हेवी चीजें आपने बोलनी है। ठीक है, your future goals must be connected to research। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये रिसर्च के लिए पागल है इंसान, तभी आपको वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मुझे लगता नहीं है इसमें पूछा जाएगा, बट स्टिल इफ दे आस्क यू, यू शुड बी अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एवरीबडी नोज अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफेंड, राइट? सो आई हैव ब्रॉट सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फॉर यू। ये ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो सब में पाई जाती है। स्ट्रेंथ्स, सबसे पहली बात, यू आर ऑर्गेनाइज्ड, कपड़े अच्छे पहनते हो, टाइम पे हर चीज करते हो। अडेप्टेबिलिटी मीन्स यू एडजस्ट इन एनी एनवायरमेंट विद एनीबडी एट इन एनी सिचुएशन, यू आर एडेप्टेबल। अडेप्टेबिलिटी है आपके अंदर। ठीक है, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, ये भी एक ही चीज हो गई लगभग, the same thing। fast learner ho, you are a very fast learner। if your guide tells you something to do or to read a book, you are a fast learner, you will learn fastly and then you will do a good research and you have a positive attitude। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये चीज, ये स्ट्रेंथ सभी में होनी चाहिए। you are self motivated, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इफेक्टिव। if a person is self motivated, he or she can do anything। गाइड को लगेगा यार ये तो सेल्फ मोटिवेटेड है, सही है, इसको ले लेता हूं, मेरे को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना। पंक्चुअल एंड प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब कि जब आपने बोल दिया कि ओके मैम, ओके सर, मैं ये करूंगा, तो यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट बिकॉज यू आर अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। यू आर पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन हैज और पर्सन शुड हैव। वर्सेटाइल means you have so many talents, you can do anything in any situation। so these are some strengths that you can mention, or if you have some strengths which are not mentioned here, you know your strengths well, you can say। आपकी strengths आपको पता है, आप बोल सकते हैं कुछ। ठीक है, चलो जी, अब हम weaknesses की भी बात कर लेते हैं साथ में। weaknesses आप जल्दी बता नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, आप weaknesses में थोड़ी ना बताएंगे मैं नशेड़ी हूं, मैं सोता रहता हूं, मैं खाता रहता हूं, मैं पीता रहता हूं, मैं घूमता रहता हूं। these weaknesses should not be mentioned। ठीक है, सबसे पहली चीज, यू आर इम्पेशेंट। शॉर्ट टेम्पर्ड है आप, बट इम्पेशेंट इज अ गुड वर्ड। ठीक है, आई एम इम्पेशेंट, और ओवर एक्साइटेड भी आप कह सकते हैं कि आई गेट ओवर एक्साइटेड समटाइम्स व्हेन आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी सैड। या तो मैं बहुत खुश हूं या मैं बहुत सैड हूं। ठीक है, आई एम ओवर एक्साइटेड, इम्पेशेंट हूं थोड़ा। देन आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। समटाइम्स आई हर्ट पीपल अनइंटेंशनली बिकॉज आई एम वेरी बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट पीपल आर नॉट लाइक मी। ठीक है, एंड ये चीजें तो बहुत लोगों में पाई जाती है। आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजिली एंड समटाइम्स इट हार्म्स मी। But you have to add one thing in your weaknesses, that you are trying to overcome these problems. You are improving every day. You have to mention this thing। Weaknesses तो सभी में होती है,
पर जो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को सभी लोग पसंद करेंगे। ठीक है, आपने वीकनेसेस तो गिना दी, साथ में ये भी बोलना है दैट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दीज वीकनेसेस और मिस्टेक्स दैट आई कमिट इन माय लाइफ एंड आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव एवरी डे एंड आई हैव इंप्रूव्ड आल्सो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सेम नाम है दाना मल्टीटास्कर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो कुछ भी अभी सुना पढ़ा ये आपके काम आएगा। एंड आई नो दैट यू हैव एन इंटरव्यू इन अपकमिंग डेज, शायद कल हो, शायद परसों हो, शायद एक हफ्ते बाद हो। तो मैं आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूं और ये सारी चीजें फॉलो करना। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई थॉट टू डिस्कस विद यू, राइट? सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सिलेक्शन पीएचडी में पक्का हो जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना, स्माइलिंग फेस के साथ जाना, आई कांटेक्ट सभी टीचर से रखना। ऐसा नहीं है कि आपने इफ अ टीचर आस्क्स यू अ क्वेश्चन, डू नॉट लुक इनटू हर और हिज आईज ओनली व्हेन यू आर आंसरिंग। आपको एक ने क्वेश्चन पूछा तो आप पहले उसको आंसर करते हो उनकी तरफ देखे और बाकियों की तरफ भी देखे बीच में, बिकॉज वो लोग भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं वहां पे। ठीक है, आई कांटेक्ट आपका सही होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए ऐसे। ठीक है, अब मैंने स्माइल किया, वो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब कईयों की स्माइल अच्छी नहीं होती है, पर कोई बात नहीं, स्माइल अच्छी ही होती है चाहे वो जैसी भी हो। कई लोगों को लगता है हमारी स्माइल अच्छी नहीं है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। खैर, मुझे लगता है कि मैंने आज सब कुछ आपको पढ़ा दिया है और फीडबैक जरूर देना, कमेंट। अगर किसी आपके और भी दीन बंधु का इंटरव्यू है तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना, है ना। तो मैं बहुत वक्त से सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं खुद पीएचडी में हूं तो मैं इस लायक हो गया था कि मैं आपको ये चीजें बता पाऊं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।